So we are very privileged and honored that a very dynamic personality from our own Nagpur, Dr. G.S. Pandey sir, is here today with us. He has vast experience in the field of environment and science. So welcome you, sir, here. So I will give a little bit of an introduction of Dr. G.S. Pandey sir. He has recently retired as Professor and Chairman XR, Chief Scientist, Science Secretary and Head, Climate Change and Skilling Division at Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) from NEERI National Environment and Engineering Institute Research Institute. After completing his graduation, post-graduation and PhD from IIT Kharagpur, he joined NEERI Nagpur as scientist in 1987, where he has worked on ever and new and innovative concepts related to environmental management, dealing with the issues like temporal leaks and gradients and its environmental application, environmental water demand of different kinds of ecosystem health risk, exposure risk assessment, etc. These issues are related to climate change and environmental pollutions. Now his present areas of interest include the application of accretion of data modulation and environmentally viable engineering methodology, which is based on ecological and carbon footprints for evolving region-specific and issue-specific environmental management plans. He has published about more than 100 papers in international and national journals, conferences, seminars, and also has written about 7 chapters for national and international books. Uh, while in his journey, he played various roles and responsibilities. He was the first science secretary of NEERI and the first coordinator of CSIR climate change program. He has guided and motivated many students for their PhDs and MTech programs. He also served as the first warden of NEERI's Research Scholar Home, member of NEERI's Management Council several times, the first member of NEERI's Regional Advisory Board for the Northern Region. He also been the first coordinator for CSIR Global Climate Change Program. He also attended third international workshop on uncertainty in greenhouse gas inventories in Ukraine in 2010. He has visited many countries, including US, Austria, Germany, and South Africa, as invited speaker. He is the chief guest and keynote speaker in many functions. He has motivated many college and school-going students toward the strong need for environmental conservation and consciousness. He has been recipient of various prestigious awards, including NEERI's Best Scientist Award, which is also known as NEERI's Foundation Day Award, 2 times in a row. He has also been the editor of NEERI's magazine called Paryavaran Patrika, and he's written a book called Paryavaran Evam Parivesh, which has got him the highest Rajbhasha honor. Earlier, he has also received Vigyan Chinta Lake Mala Puraskar from CSIR, and he has also been chosen for the Marquis Who is Who in the World, which means endeavors to the leaders who are influencing their nation's development. So when we talk about his contribution, here especially I want to mention about his contribution in regard to climate change. He has approached this problem to ecosystem and human health analysis and evolved tools of environmental analysis. His other contributions are skill development and training program, which connected with ecological footprints and carbon footprints, development and mitigation and adaptation studies through accessing vulnerabilities, setting appropriate priorities, and continuously monitoring and refining the methodologies. So, except there are many contributions in the field of science and environment. So, we are very glad to have Dr. G.S. Pandey sir today with us on the board for guiding, inspiring, and mentoring us. So, thank you, sir, for here. थैंक यू तुषार। अब मैं इसके पश्चात जो हमारे स्पीकर सर है डॉक्टर पांडे सर, उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमें अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएं। डॉक्टर पांडे सर। विशिष्ट जनों एवं विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। श्री विसेन जी, आदरणीय डॉक्टर नानोटी जी, श्री बिदवई जी, श्री सक्सेना जी, डॉक्टर रेवातकर जी जो हमारे साथ बैठे हैं,
जब आदरणीय नानोटी जी ने मुझसे आग्रह किया इस विषय पर बोलने के लिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, तो तब से मैं लगातार सोच रहा था इस विषय पर क्या बोलना है, क्योंकि मुझे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच कोई अंतर नजर ही नहीं आता। मतलब ऐसा है कि अब चूंकि विचार विमर्श करना है, कॉन्फ्रेंसेस करने हैं, मीटिंग्स करनी है। बचपन में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र और विनोद में बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन नींद और कलह में मूर्खों का समय बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। तो चूंकि हम लोग विद्वान हैं, तो हम लोगों का समय जो है काव्य शास्त्र और विनोद में बीतना चाहिए, इसलिए ये सब कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए। नहीं तो हम लोग प्रमुख वक्ता, विशिष्ट वक्ता और चीफ गेस्ट कैसे बन पाएंगे। लेकिन इन दोनों विषयों में कोई मतभेद ही नहीं है। बार बार ये मतभेद अगर हम लोगों के सामने उभर कर आ रहा है, तो वो इसलिए है कि आप सब लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ी है पता नहीं, प्रेजेंट जनरेशन ने शायद वो कहानी नहीं पढ़ी है। एक हाथी हुआ करता था, 7 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की एक स्टोरी है। एक हाथी था और 7 ब्लाइंड मैन थे उसके इर्द गिर्द। उनसे बोला गया कि आप हाथी की परिभाषा दीजिए। तो चूंकि वो ब्लाइंड थे, वो हाथी के अलग अलग अंशों को, अंगों को ही छू पाए, और जिस जिस व्यक्ति ने जिस अंग को छुआ, उसने हाथी की परिभाषा उसी तरह से दी। किसी ने सूंड छुआ होगा तो हाथी सूंड है ऐसा बताए, किसी ने पांव छुआ तो पांव है ऐसा ही बताया। तो हमारे ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, धर्म और इनसे संबंधित विषयों को, वो जो हाथी है, उसको अलग अलग लोग जब उसको स्पर्श करते हैं, तो उनका स्पर्श उन ब्लाइंड मैन की तरह ही होता है। कोई उसे विज्ञान बोलता है, कोई आध्यात्म बोलता है, कोई धर्म बोलता है, कोई पर्यावरण बोलता है, लेकिन मुझे इन सारे विषयों में कोई अंतर नजर नहीं आता। हमारा बचपन का काल जो है बहुत ही आध्यात्मिक परिवेश में गुजरा। दूसरे शब्दों में आप उसे वैज्ञानिक परिवेश भी बोल सकते हैं। हमारे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर हुआ करते थे, और पढ़ाने के बाद उनका अधिकतर समय जो है धार्मिक क्रियाकलापों में मिलता था। तो शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति है, वो उनसे मार्गदर्शन के लिए उनके पास पहुंचते थे। आपकी पत्रिका अखंड ज्योति भी अक्सर क्या आती ही थी हमारे यहाँ। और धीरे धीरे मुझे भी उन सारी चीजों में रुचि मेरी बढ़ती गई। तो मैंने भी कुछ किताबें पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। पिताजी जो अलमारी में रखते थे उसे निकाल कर मैं पढ़ लेता था। तो अचानक एक दिन पिताजी ने ही बोला होगा, मेरी माताजी तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थे जितने पिताजी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा, कबीर दास का एक दोहा मेरे सामने प्रस्तुत किया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। मैंने सारी पोथियां उसी दिन बंद कर दी, ग्रंथ बंद कर दिए, और मैं प्रेम के मार्ग पर निकल पड़ा। जो कुछ भी सामने दिखता था उस समय प्रेम करता था। पौधा हो, गाय हो, बछड़े हो, मनुष्य हो, हमारे शिक्षक हो, पिता हो, माता हो, क्योंकि वही सबसे बड़ा मार्ग है और प्रेम का ही मार्ग है। तो चाहे हम विज्ञान के माध्यम से चाहें, चाहे आध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहें, हर व्यक्ति विश्व में आनंद की खोज में ही लगा हुआ है। किसी भी माध्यम से हमें आनंद मिलना चाहिए। तो हम कोई आध्यात्म का कोई मार्ग अपनाता है और उसे आध्यात्म बोलता है, कोई दूसरा मार्ग अपनाता है उसे विज्ञान बोलता है, कोई तीसरा मार्ग अपनाता है उसे संस्कृति बोलता है। ये अपने अपने अपनी अपनी सोच है, अपने अपने संस्कार हैं, और उसमें द्वंद्व मुझे तो दिखलाई नहीं पड़ता। तो मेरा अध्यात्म, मेरा धर्म बचपन में माता पिता ही थे, उन्होंने जन्म दिया है। उनसे बड़ा भगवान मेरे लिए कौन हो सकता है। मैंने भगवान को तो देखा ही नहीं आज तक।
तो सबसे बड़े भगवान वही थे। शिक्षा के लिए जब स्कूल में गया तो मेरे शिक्षक सबसे बड़े भगवान थे, क्योंकि मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो प्रेम की तलाश है। प्रेम कहाँ मिलता है, आनंद कहाँ मिलता है? प्रेम तो मैं दे सकता हूँ, बट आनंद तो मुझे ढूंढना है। उस समय मुझे अपने जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ही मुझे आनंद मिलने लगा। मैं घंटों बैठ कर पढ़ता रहता था, और मुझे हम्म, खिलाने के लिए माँ को बार बार बोलना पड़ता था, बेटा उठ जाओ, टाइम हो रहा है, खा लो ये है। लेकिन मुझे जहाँ आनंद मिल रहा है मैं बैठा हूँ। मेरे लिए आध्यात्म का मार्ग था, और वो विज्ञान ही था, मैं विज्ञान ही पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते भगवान की अच्छी कृपा होगी, मैं आईआईटी में पहुंच गया। आईआईटी में जाने के बाद देखा कि कई और चीजें जो है मुझे परिमार्जित करनी है। जो विज्ञान और अध्यात्म के बारे में बचपन में मुझे शिक्षा मिली है, क्योंकि हमारे मन में भी कुछ रूढ़िवादिता थी कि यही कृष्ण ही भगवान होते हैं, राम ही भगवान होते हैं, यही भगवान है। वहां जाकर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, भगवान तो वो नहीं है। और जब फिजिक्स की पढ़ाई की तो मुझे लग गया कि वो तो एटम ही है, और सब कुछ जो है एटम के भीतर निहित है। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आप उनसे सीखिए। हम समाज में बार बार एक दूसरे को कोसते रहते हैं, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। वो पॉजिटिव सोचता है, वो निगेटिव सोचता है, वो उदासीन है, वो कुछ करता ही नहीं। लेकिन एटम स्टेबल इसीलिए है क्योंकि उसमें ये तीनों ही प्रकार के तत्व विद्यमान है। इलेक्ट्रॉन भी है जो निगेटिव है, प्रोटॉन भी है जो पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन भी है जो न्यूट्रल है। अगर हमारे समाज को एक संतुलित ढंग से रहना है तो उसमें इन तीनों अवयवों को एक खास रेशियो में रहना जरूरी है। क्योंकि सुबह से शाम तक केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी बनी रहे, वो भी समाज को उदासीन बना देगा। अभी हम नानोटी साहब से चर्चा हो रही थी जब हम लोग कार में आ रहे थे उसी समय, कि कल्पना कीजिए एक व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल पूजा ही करते रहता है, घर वाले ही उसको शाम तक निकाल देंगे। हमें भगवान ने एक्चुअली भगवान ने कभी पूजा किया भी नहीं। वो तो कर्तव्य करते रह गए। कभी देखा ही नहीं कि राम बैठ के घंटों पूजा कर रहे हैं, कुछ आराधना कर रहे हैं उस। और सूर्य देव को कि हम आराधना क्या करेंगे, उनके लिए हम मंत्रोच्चार क्या करेंगे? इस पृथ्वी पर सोलर सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी कृपा के चलते ही हो रहा है। जो एबायोटिक है, वेदर इट इज एबायोटिक प्रोसेस, बायोटिक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल, all those processes, everything is being regulated by the interaction of sun and earth on earth. This is the basic premise on which ecological engineering is based. तो आप उनकी पूजा कीजिए या नहीं कीजिए, वो याचना भी नहीं कर रहे हैं, और वो प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे हैं कि आप मेरी पूजा कीजिए। वो चलाते ही रहेंगे, और आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन का भी आंसर हम नहीं दे पाए हैं कि अंडा पहले या मुर्गी पहले। बड़े बड़े यंत्र हमने बना लिए हैं, लेकिन हम अगर कोई बोल दे कि मेरा मन कहाँ है, आप किसी यंत्र से उसे पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उस किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर खड़ा है, तो कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना पाएगा। ये विज्ञान की सीमा है। उसी तरह से आध्यात्म की भी सीमा है। अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत ढंग से करेंगे तो आप मंदिरों को युद्ध स्थल बना देंगे, मस्जिदों को युद्ध स्थल बना देंगे। तो आध्यात्म का भी इंटरप्रिटेशन जो है वो सही ढंग से होना चाहिए। और तब हम वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें सही ज्ञान दिया गया हो, जिसका सर्वथा अभाव हमारे समाज में है। नहीं तो आज अमेरिका में वो नहीं हुआ होता जो अभी हो रहा है। और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज्ञान की दिशा ही पथभ्रांत कर दी गई। अनादिकाल के न जाने किस अज्ञात मुहूर्त में पृथ्वी नामक यह ग्रह पिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उस सद्य स्फुटित धारित्री पिंड में अनेकों ज्वलंत गैसें विद्यमान थी। फिर लाखों वर्षों तक पृथ्वी ठंडी होती रही। लाखों वर्षों तक उस पर तरल तप्त धातुओं की लहाछेह वर्षा होती रही। लाखों वर्षों तक उसके भीतर और बाहर
भयंकर प्रलय कांड मचा रहा और जीव तत्व स्थिर अविक्षुब्ध भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा रहा। अवसर आने पर उसने समस्त जड़ शक्ति के विरुद्ध अपना सर उठाया, एक नगण्य तृणांकुर के रूप में। यह मनुष्य उसी की अंतिम परिणति है। विराट ब्रह्मांड निकाय, कोटि कोटि नक्षत्रों का अग्निमय आवर्त नृत्य, निरंतर शून्य में उद्भूयमान और विनाशमान निहारिका पुंज विस्मयकारी है। पर उनसे अधिक विस्मयकारी है यह मनुष्य जो इस नगण्य स्थान काल में रहकर भी उनकी नापजोख करने निकल पड़ा है। और वही मनुष्य आज क्या कर रहा है? आज विश्व के कोने कोने में औद्योगिक विकास की होड़ लगी हुई है। क्षिति जल गगन और समीर का उपभोग एवं हनन सीमा पार कर चुका है। पादप गृह प्रभाव हर घर की छत पर सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। ओजोन की सतह के हर छिद्र से प्रलयंकारी विभीषिका झांक रही है। व्योममंडल की समस्त भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचनाएं एवं संतुलन खतरे में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में प्रति व्यक्ति मांस, मदिरा और धातु की खपत 50 गुनी से ज्यादा बढ़ी है। ऊर्जा की खपत 5 गुनी से ज्यादा बढ़ी है। स्टील का उत्पादन 25 गुना से ज्यादा बढ़ा है। और इन सारे भौतिक संसाधनों के उत्पादन के लिए जो हमने औद्योगिक इकाइयां बनाई हैं, उनसे निःसृत प्रदूषण ने पृथ्वी की जो दुर्दशा बनाई है वो आप सब लोगों के सामने है। चिरदग्ध दुखी यह वसुधा, आलोक मांगती तब भी, तम तुहिन बरस दो कणकण, वह पगली सोई अब भी। यूनेप की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 300 सालों में तेल और गैस के भंडार रिक्त हो जाएंगे और आने वाले 3000 सालों में कोयला भी लुप्त हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें ऊर्जा के अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिनके लिए यदि हमें वह ज्ञान अर्जित करना है जो विश्व रहस्य के नए द्वार खोलने को तत्पर है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भंडारों पर धावा बोलने को बद्ध परिकर है, जो मनुष्य को असीम सुख और समृद्धि तक ले जा सके, वही ज्ञान जो है वांछनीय है। बचपन में हमने सॉमरसेट मॉम की किताब पढ़ी थी, द केक्स एंड एल। उसकी एक पंक्ति मुझे काफी पसंद आई थी, काफी विचित्र भी लगी थी, क्योंकि उस समय उस पंक्ति का अंतर्निहित गूढ़ार्थ मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया था। आज लगता है बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो पंक्ति थी, ब्यूटी इज ए पीक विच वंस रीच्ड लीड्स यू नोवेयर। अर्थात सुंदरता वह शीर्ष है, वह उत्कर्ष है, वह चोटी है, वह मंजिल है, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को सहसा यह साहस होने लगता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और जो बात सुंदरता के बारे में लागू है, ठीक वही बात सफलता, संपन्नता और विकास के बारे में भी लागू है। सच पूछिए तो हम में से अधिकांश मनुष्य आज इन तीनों शब्दों की न तो समुचित न व्याख्या कर पाएंगे, न उनकी परिभाषा दे पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके हम में से अधिकांश मनुष्य रातों रात सफलता के उत्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, संपन्नता के उत्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं और विकास की मंजिल पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें गलत, सही, नैतिक, अनैतिक, पारंपरिक, गैर पारंपरिक कोई भी रास्ता क्यों न अख्तियार करना पड़े। और सच पूछिए तो पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी महत्तम समस्याओं की जड़ में है मनुष्य की यही मानसिकता, जो उसे सदैव कृत्रिमता के आगोश में लिप्त रखना चाहती है, जो उसे निरंतर कृत्रिमता की मृग मरीचिका के आगे पीछे भागते रहने को बाध्य करती है, और जो समस्त मानव समुदाय को दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित करती है। एक वर्ग है विपुल संपन्नता का और दूसरा है विवश विपन्नता का। एक तरफ है अर्धनग्न झुग्गी झोपड़ियां और दूसरी तरफ है गगनचुंबी अट्टालिकाएं। और मनुष्य रातों रात बड़ा से बड़ा बनने की कोशिश में निरंतर पृथ्वी से दूर होता चला जा रहा है। जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। और जैसे जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी समस्याएं और भी विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। और परिणाम आपके सामने है। वायु प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या, मृदा प्रदूषण की समस्या,
और पृथ्वी के कोने कोने का तापमान निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। घर में आग, शहर में आग, जल में आग, नहर में आग, इधर कालिमा उधर प्रदूषण, इससे बढ़कर व्यभिचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। प्राकृतिक संसाधनों के मध्य रहने का माधुर्य तो मुझे मालूम है, नैसर्गिक संसाधनों के स्वर्गिक सुख का आनंद तो मुझे मालूम है, लेकिन कृत्रिमता के उस अथाह महासागर के उस पार का रहस्य मुझे आज भी पता नहीं चल पाया है। और विडंबना तो देखिए, संसाधनों की कमी पृथ्वी पर है और हम उसे तलाश कहां रहे हैं? चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, और उसके लिए अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे तो हाँ, मुझे तो डर लगता है कि अगर संसाधनों की खोज कुछ इसी तरह से जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब समस्त मानव समुदाय को समवेत रूप से सीधे स्वर्ग ही नहीं जाना पड़े। खुदा न करे हमें वैसे दिन देखने को मिले। मैं भगवान से निरंतर यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो इन संसाधनों की प्राप्ति हमें पृथ्वी पर ही उपलब्ध हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। इतिहास में जिस मनुष्य की धारावाहिक जय यात्रा की कहानी हमने पढ़ी है, साहित्य में जिसके आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का स्पंदन देखा है, राजनीति में जिसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है, उस मनुष्य का विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए, भाषाई एवं तकनीकी द्वंद्व नहीं। हमारी अर्थनीति, हमारी राजनीति, हमारे भावी नवनिर्माण की समस्त योजनाएं तभी सर्वमंगलीय विधायिनी बन सकेंगी जब हमारा हृदय उदार एवं संवेदनशील हो, बुद्धि सूक्ष्म एवं सार ग्राहिणी हो, संकल्प शुभ एवं महान हो। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। बचपन में मैंने महाकवि जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताएं पढ़ी थी। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे आज अनायास याद आ रही हैं। बीती बिफावरी जागरी, अंबर पनघट से डुबो रही, ताराघट उषा नागरी, खग कुलकुल कुलसा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, नवल मुकुल रस गागरी, बीती बिफावरी जागरी। अलकों से राग अमंद पिए, पलकों में मलयस बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कितने मनोहर होंगे उस समय के प्राकृतिक दृश्य, कितनी मनोरम होगी उस समय की प्राकृतिक छटा, जब कवियों के मन में इस तरह के हाव भाव उमड़ते घुमड़ते होंगे। आज के इस प्रदूषित वातावरण में काव्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा। कहाँ गए वो सरसों के फूल, अरहर के खेत, आम के पल्लव, पीपल की छांव, नीम के पत्तों की हल्की सी सरसराहट, गिलहरी की थिरकन, बुलबुल की चुलबुलाहट, कोयल की कूक, मोर के पंख, गांव की गलियों के मौन स्वर, घाटियों के यौवन का उन्माद, निर्झरों की कलकल ध्वनि, और जब प्रतिध्वनि ही तुम्हारे बोल से आती नहीं है, सोच लेना चाहिए कि हो रही गलती कहीं है। घाटियां आवाज पर आवाज देती और गलियां मौन रहती और मैं भी मौन हो जाता हूँ। परम पूजनीय जगतगुरु आदरणीय श्री राम जी शर्मा जी, माता जी भगवती, और इस संगोष्ठी में प्रमुख रूप से जो अतिथिगण उपस्थित है, पांडे साहब, जिनका मैं अभी बाजू में बैठा हूँ, तो मैं उनका बड़ा फैन हो गया कि मूल रूप से मैं मराठी भाषिक इंसान हूँ, और जो भी मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है उस हिंदी में मैं मेरे विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जब इनको सुन रहा था तो मैं मेरा जितना भी मैं सोच के आया था कि मुझे क्या बोलना है, मैं पूरा भूल गया। और इन्होंने जो कविताएं ऐसे फ्लो में डाला कि मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि ये मैं कहाँ से पकड़ूं और क्या लिखूं। मुझे आदत है वो थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहूंगा सर जी, मैंने इसके पहले भी आपको सुना हूं, क्योंकि मैं एक महाविद्यालय में काम करता हूँ, तो हमारा निरी के साथ में काफी ये रिश्ता है। काफी सारे संगोष्ठी या सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हमारे निरी के साथ में आयोजित हुए हैं।
तो मैं काफी बार, मैं आपको बहुत बार सुना सर, लेकिन आज जो जिस ढंग से मैंने सुना, तो शायद हो सकता वो जगह का इफेक्ट हो सकता है, या इतना मैं करीब आपके था। तो मैं चाहूंगा कि मेरे हाथ से अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे प्लीज सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मूल रूप से मैं खुद को शिक्षक समझ, जो भी मेरा परिचय दिया है